जिक्र कर, जिरह कर और सफर कर। जिंदगी के रास्तों में तू सफर कर। न बैठ गफलत में मेरे दोस्त, कभी भी एक दिन चल जी मेरे साथ ये सफर कर। खुशामदीद, वेलकम और स्वागतम। कैच दम यंग के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म को सराहा, युवा बच्चों तक पहुंचने की इस तकरीर को हाथों हाथ लिया और साथ ही उन बच्चों में ही नहीं मुझ में भी यह हौसला जगाया कि बातें करने से ही उम्मीदें जगती है। So Catch Them Young is a platform meant to support and guide young people. It is a platform where we try to listen much from the younger generations, and it is, as it is rightly said, that the younger ones have to listen a lot. But CTY is a platform where we listen more to them and the champ speaks. इस शो के जरिए हम देश दुनिया के उन बच्चों को पिक करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं जिनके पास बताने को बहुत कुछ है, सुनाने को बहुत कुछ है। कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ नई, कुछ वही पुरानी और जो हम पहले से सुनते आए हैं। This is not just a platform to open up, it is also a medium to let the older generation to know how we can come forward and make a bridge between both the generations. यहाँ चुकलस भी होगा, सीरियस टॉपिक्स पे बातें भी होंगी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होंगी। सो आज के इस एपिसोड पे let's talk to Adisha Grover and try to break down to different topics and incorporate into our episode. Presenting you the guest of today, Adisha Grover. Adisha is a second year student pursuing her grads from College of Arts Delhi. She wants to be a famous artist someday and would love to paint and read in spare time. She is a passionate artist and dedicated her life to paints and brushes. Recently, she has grabbed the silver medal in Wave Summit, which was held in Mumbai a few days back, under the mentorship of our own Prime Minister Modi ji. Taking you straight towards Adisha. Welcome to the show, Adisha. Hi, ma'am. Hi, Adisha. Thank you. Thank you for this. I'm good. I'm very good. How are So, you, Adisha, ma'am? I'm good. Thank you, Adisha. But Adisha, let's come straight to the point and let's take this journey ahead. Can you please introduce yourself? I am Adisha Grover, and basically, I am from Uttarakhand. I studied in Haridwar, Acharyakulam, Mm-hmm. and now I am pursuing fine arts in College of Art Delhi, and I'm a second year student. Okay. So, Adisha, इससे पहले कि मैं कुछ और पूछूं, your name is a peculiar one, you know. I have never Yes. heard it. I guess many of us would not have heard it. So, what does it mean? Actually, it means the one who has opportunities from all the direction. मतलब आदिशा जिसपे सारी दिशाओं से opportunities. Ah, Disha. That's good. That's so knowledgeable as well. And जी, my dadi named me. Oh, that's great. That's a good name even. And you are just proving it, I guess, from all the spells. Thank Adish, you. how do you define the day when you are truly, felt seen? ना इट वाज गुड मतलब फॉर मी इट वाज वेरी गुड कि कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है आपका मतलब पोटेंशियल नाइट्स मतलब हम लोग काम करते हैं सब बच्चे काम करते हैं पर आपको अगर कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इट फील्स गुड कि आपको कोई जान रहा है आपकी आर्ट को जान रहा है आप क्या कर रहे हो वो जान रहा है ये एक इंसाइट है मतलब आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया गया हो लोगों के बीच में? यस मैम when I was in school, so there were many competitions for student in school. मतलब poster making competition. Even your Veer Gatha project, it organized the painting competition, everything. In college, mostly we get workshops to attend. Uh, Sometimes there are competition. Last year there was a competition in honor of I don't remember. It was a martyr. So in honor of him, there was a painting competition.
So it was on Viksit Bharat, and there I got the second position. Here again, I got the second position at the Great. Waves competition. Mhm. It was in Wave Summit, Mumbai. Okay. Adisha, who is your biggest inspiration or hero? Uh, it will be my father. He's my biggest inspiration. Matlab, he had such a tough time growing up and everything. He tried to give us everything. Matlab, he always supports me in everything. I say I want to do this, he will be right behind me. Matlab, you do it. It's fine. Uh, he holds our family together. मतलब कितनी भी प्रॉब्लम आए, मतलब कुछ भी हो, बिजनेस में कुछ हो, कहीं कुछ हो, he don't let it come to the family. मतलब कभी नहीं. You will always find him in jolly mood and everything. So he is my That's inspiration. He is my hero. okay. So can you please let me know about your family background? Uh, okay. I am from a Punjabi family based in Uttarakhand. So we came from when there was partitions. We came from Lahore to Uttarakhand. Mm-hmm. And, uh, I live with my grandmother, grandfather, my parents, and I have a younger sibling. Okay. And right now I'm in Delhi, so I'm Mm-hmm. far from them. That's great. Yeah. आदिशा, जैसा हमने मालूम किया और जैसा हमें पता चला कि आपको रिसेंटली वेव समिट 2025 का पार्ट बनी. इट वाज अ ह्यूज वन, इट वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया इवन. सो इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा प्लीज बताएंगे. ओके, तो एक्चुअली हमें ये वाला कंपटीशन हमारे ग्रुप से पता चला था कॉलेज के. हम्म. सो इट वाज हेल्ड इन 2 phases. वी हैड टू सबमिट एन एंट्री फर्स्ट, कि पहले स्क्रीनिंग राउंड था. हम्म. तो वी वर गिवन 20 मूवीज टू चूज फ्रॉम. So I chose Salam Bombay. It was about the kids in Mumbai living in slums of Bombay. So I करेक्ट. chose या. it. Hanji. It was directed by Meera Nair. So I designed a poster. I redesigned the poster. And then it was selected in the second round. In the ओ. second round, there were 10 finalists. From Pan India, there were 10 students who were selected. Then we had competition yesterday. It was 2nd May. So the competition was held in Geo Convention. It was just yesterday, I guess, huh? Second May is. It was just Oh, yesterday. yeah. Yeah. So I had a round trip to Bombay. मतलब कि I went the night before and then I came the night after because I'm having my final examinations right now. So Oh, so it would be very tough for you to accommodate between both the cities. yes, ma'am, it was. And But the it was whole, totally worth it. It was yeah, it totally was worth the totally experience. worth it. You made it. And उस पूरे कंपटीशन का क्या मोटो था? कैन यू प्लीज लेट मी नो. और हाँ. आगे भी बच्चे अगर इस तरीके के कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसके बारे में, या इस पूरी जर्नी में आपको किसने फेलिसिटेट किया, व्हाट वाज द यू नो एक क्रक्स वहां से मिला, व्हाट इंस्पिरेशन डिड यू कम विद? Okay. So मतलब मेरे को कॉलेज ने काफी सपोर्ट किया इसमें. कि our professor, मतलब she guided us and everything. She helped me with the composition and all. And then she supported me even. I skipped my exam yesterday. So ओह. it was adjusted. मतलब तो I gave it वैसे. today. हाँ. So she helped me. There were many competitions actually. The Wave Summit, they organized around 70 competitions for the creators. For all young generation creator. मतलब there were reel making competition, there was video making competition, and I guess there was a comic strip competition. So there was everything for everyone. मतलब everyone could participate. हाँ, the buffet was a very wide one. हाँ, the buffet was very good. आपको जो प्राइज मिला वो किसने दिया? It was Anupam Kher. Anupam Kher gave me the prize there. Okay. So, Adisha, art is like a meditation. The deeper you go, the larger means of life you get. So, at this very young age, कहीं ऐसी डीप टाइम डाइविंग एक्टिविटीज आपको बहुत सीरियस तो नहीं बना देती?
इट डज, बना देती हैं कि एवरीवन से आई एम मैच्योर फॉर माई एज। मतलब आई एम 19 बट किसी को लगता नहीं है। मतलब कई बार हो जाता है कि दे से यू आर वेरी मैच्योर फॉर योर एज। मतलब आई थिंक अ लॉट बिफोर सेइंग। मैं कुछ करने से पहले बहुत सोचती हूँ, मैं कुछ कहने से पहले ज्यादा सोचती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाती। तो इट डज, आर्ट अफेक्ट्स यू इन दैट वे। Okay, so there are various type of art forms और आपका जो फोटे है वो किस आर्ट फॉर्म में ज्यादा है? Painting, my specialization is actually painting, हम्म। and in painting I prefer watercolors personally, हम्म। because it actually gives you the flow to work with water and colors. कि, you don't know what you're, मतलब you can't expect the results. It's about various factors, temperature, humidity, everything affects the effect. मतलब सब कुछ affect करेगा आपका जो result आने वाला है उसको. So I love it. I love watercolors. And recently I am trying my hand on sculpture as well. Oh, the college would be providing you all the facilities and all to learn it further, correct? Yes, yes. आदिशा, दिल्ली तक आने का सफर जो रहा होगा, इट वुड बी वेरी, आई वुड से वेरी कॉम्पिटिटिव एज अ आउटसाइडर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस यू हैव फेस्ड टिल येट एंड आपका सबसे यादगार पल क्या रहा है अभी तक का? इट वाज, मतलब कंपटीशन वाज टफ। मतलब सब सोचते हैं कि फाइन आर्ट्स में कंपटीशन क्या होता है। मतलब मैं किसी को कहती हूँ ना कि फाइन आर्ट्स का कॉलेज है, तो दे आर लाइक ओके यू गेट द एडमिशन। ऐसा नहीं होता। मतलब यू कांट गेट द एडमिशन जस्ट लाइक दैट। कि you हम्म। have to give the examination, you have to pass the examination, there are several examinations actually, you have to pass interviews and all। कि इतना easy नहीं होता। So, और Adisha, just to interrupt you in between, is it a exam? This examination is being conducted by CUET or some other institutions are over there? so okay ma'am, there are several schools of art in India, Mm-hmm. which are central schools like Vishwabharati, BHU, College of Art. They all go through the process of CUET. And the Correct. state affiliated schools like JJ School of Art and MSU Baroda, Mm-hmm. they all are state, मतलब state board से connected होते हैं. So we have to give theory examination there as well. कि Okay. you don't go there by CUET. You have to give a theory, then you have to give a practical, then you have to pass the practical, then you have to give an interview. So how do you prepare for it? Because स्कूल की पढ़ाई अलग होती है and then you come for the graduation thing. तो जैसा आपने बोला theoretical. So art में theoretical पढ़ना is just a new thing. So how do you prepare for it? Because it is for the younger generation, for the upcoming generations to know. Okay. So actually, there's CUET का तो syllabus is based on NCERT, the book of Correct. मतलब history of fine arts. So you Hmm. can get the entire syllabus from there. But if you want to prepare for other institutes like JJ and मतलब Baroda, you have to go on a wider spectrum. कि you have to know about everything, every artist. मतलब थोड़ा थोड़ा from everything. You have to know all the basics. कौन कौन से art period हुए, कौन कौन से आर्टिस्ट हुए, उन्होंने कौन से स्टाइल में काम किया, कोई मीडियम कैसे बिहेव करता है। यू हैव टू नो एवरीथिंग। एंड इट डजंट एंड देयर, मतलब देयर इज जीके एज वेल। सो यू हम्म। कांट एक्सपेक्ट क्या अच्छा। आएगा। जी। आतिशा, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है बट फॉर यू आई गेस आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब सारी दुनिया टेक्निकल लाइन की तरफ जा रही है, अधिकांश बच्चे, मोस्ट ऑफ देम, दे आर ट्राइंग टू परस्यू इंजीनियरिंग और मेडिकल और समथिंग एल्स, और मे बी इन द कॉमर्स लाइन, तब आप अपने ब्रशेस से, जिसको कूची बोलते हैं, कूची से रंगों से खेल करके आप कैसे अपने एम्बिशंस को पूरा करोगे? ओके, दैट्स अ टफ वन। कि एम्बिशंस को पूरा कैसे करेंगे। तो मतलब ऑनेस्टली क्लियरली आई डोंट नो, मतलब कि अभी आगे क्या करना है। मतलब यू डोंट नो एट दिस एज कि आगे कितना है क्या है। बट आई नो आई विल मेक इट, कि आई विल मेक इट गुड। कि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं अच्छे से हम्म। करती हूँ काम। आई एम रेजोल्यूट कि मुझे करना है तो करना है। सो आई आई वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। ओह, दैट्स गुड। एंड अच्छा, लाइक जैसे आपने बताया कि आप हरिद्वार से आए हैं
and you were in an Vidyapeeth or something like that, है ना, आचार्य हाँ, कुलम. तो सारे कलम. यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पेरेंट्स की क्या भूमिका रही? आपको ड्राइंग, कलरिंग, इन सब में इट वुड बी अ डिकेट का आपका एक मुझे लगता है डेडिकेशन रहा होगा. बहुत सारे बच्चे आर्ट सीखते हैं, और स्पेशली अभी समर्स आ रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट घर में जो रहते हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को हॉबी क्लासेस में डाल देते हैं, टू फॉर अ टाइम पास एज वेल, आई इन नो. इफ आई से. सो पेरेंट्स को, या ऐसे बच्चों को जिनको सच में आर्ट में एक पैशन है, उनको आप इस तरीके से क्या बताना चाहेंगे? बिकॉज आपकी जर्नी काफी लंबी रही है आर्ट के फील्ड में. Yes, ma'am. So my parents were very supportive. They never stopped me. मेरे को आर्ट में शुरुआत से इंटरेस्ट था. 5th क्लास से आई वाज लाइक आई वेंट टू आचार्य कुलम. इट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी. हम्म. देयर वाज अ टीचर, मतलब our art teacher, he was from BHU. ओके. So he taught us very well all the technique, all the stuff. मतलब टेक्निकल स्टफ तो उन्होंने ही कवर कर दिया था. मतलब मैं कॉलेज में आई तो मुझे टेक्निक के लिए कोई इशू नहीं आता कि मुझे कुछ सीखना है. हम्म. Uh, तो he guided me and everything. But अगर किसी को सीखना हो, अगर जैसे the summer camp is a good way to start. But ओके. if the kid actually have an interest and if the parents can recognize it, so they should enroll him into an academy and all. कि उन्हें शुरुआत से अगर उन्हें करना है तो let them do it. मतलब it shouldn't be like कि उनका ड्रीम रह गया या ऐसा कुछ. इट्स अ गुड फील्ड. मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी है. ऐसा नहीं है कि कोई कमी है यहाँ पे. ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, मेक इट बिग, सब बना सकते हैं. मतलब आर्टिस्ट डू गुड. करेक्ट, सो बिकॉज दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड. आपके पास नई टेक्निक्स हैं, नए एस्पिरेशंस हैं, नए फील्ड्स भी है जहाँ पे आप अपने को आगे बढ़ा सकते हो. सो इफ आई टॉक अबाउट स्कूल टाइम, यू नो वी ऑल्सो फेस्ड इट, एंड आई गेस मॉडर्न टाइम्स में भी बच्चे फेस करते हैं कि एज यू नो दैट schools are the founding pillars of our life. Apart from different subjects, do you really feel that school plays an important role in making an artist? As I have also experienced कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे आज भी आर्ट क्लासेस और SUPW क्लासेस को थोड़ा सा दोयम दर्जे का, जिसको और स्पष्ट कहूँ तो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह लेते हैं कि लाइक आर्ट क्लास है, चलो ऐसे ही निकल जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? आपके एक्सपीरियंसेस क्या है? और वहां से जो आपने ये जो भी एक्सपीरियंस लिया, उसको आगे आगे के बच्चों के लिए उनको क्या सलाह दोगे और उन्हें कैसे स्ट्रेंथन करोगे? प्लीज सजेस्ट अबाउट इट. so yes, they treat art classes like second tier citizen. They do. Everyone does. Even we did. मतलब if there was a music class, so I won't give it as much importance. मतलब देनी चाहिए, but I won't give it. So हम्म. we should. मतलब school system. Even the problem is with the mentality, I guess. कि everyone treats these kind of subjects like oh हो जाएगा. मतलब it doesn't happen. You should value them. मतलब इफ यू मतलब अगर वैल्यू नहीं देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं. दिस क्लासेस प्ले अ बिग रोल. अगर ये क्लासेस नहीं होंगी बच्चों को पता ही नहीं चलेगा उन्हें करना है नहीं करना है, उन्हें परस्यू करना है नहीं करना है. तो स्कूल शुड लाइक फोकस आपको ऑन इट अ सच बिट. में लगता है कि स्कूल में वो सब कुछ सिखाया जाता है जो आपको एक आर्टिस्ट बनने में मदद करता है, या आपके पेरेंट्स जो आपको आउटर साइड वर्ल्ड में जो सिखाते हैं दैट मेक्स यू एन आर्टिस्ट? स्कूल की इस पे कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है? बिकॉज देखो, आप जैसे ही स्टूडेंट्स आगे चल करके कोई ना कोई उनमें से स्कूल में जा करके अपने उस डिग्री के तहत दे दे बिकम द आर्ट टीचर, तो क्या वो उतना जस्टिफाई कर पाते हैं टू मेक अ स्टूडेंट एन आर्टिस्ट? क्योंकि स्कूल में बहुत बड़े जनरली पोस्ट दे डजंट. रखते हैं. जनरली दे डजंट. मतलब बट आई वाज लकी इनफ टू गेट अ टीचर लाइक दैट. ही वाज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट. मतलब we actually I lived in a hostel, so it was an Gurukul. करेक्ट. तो
uh, the young kids, they don't give focus to such things. Matlab, I love to paint, but it wasn't like कि I will go this matlab regularly at 5 p.m. to paint. मतलब Oh, you have to be strict. You strict with those little kids कि आपको डांटना है उन्हें कि उन्हें करना है, तो you have to push them कि do it. So my teachers was very strict. He would come at 5 p.m. in front of our hostel gate. He would collect us all. He would take us all to art gallery. He will shout at us and all, but he made us do it. Matlab, and it helped. It worked. I'm here. So I guess. exactly. लिसनिंग टू यू गिविंग मी दैट गूज बम्स, जो मैंने कहीं पे पढ़ा है कि शांति निकेतन में किस तरीके से लोग आर्ट को परस्यू करते हैं, एंड टीचर्स आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट दोज थिंग्स, बच्चों को सिखाने में। दोज वुड बी द डेज, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, बट आई कैन जस्ट हियर फ्रॉम यू एंड कैन एक्सपीरियंस इट राइट नाउ। सो आई गेस schools would be hearing it and would give it a पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चों को किस तरीके से आर्ट सिखाएं और उसको किस तरीके से आगे ले जाएं। आदिशा, Okay. दिस इज द न्यू वर्ल्ड ट्रूली डेडिकेटेड टू डिजिटल मीडिया। यहाँ तक कि फिल्मों के पोस्टर्स भी ग्राफिक्स से ही बनते हैं। अब मोस्टली पोस्टर्स बनाना बंद हो चुके हैं, जो पेंटिंग वाले पोस्टर्स होते हैं। आर्ट्स या तो अमीरों की दीवारों में सजते दिखते हैं या नेशनल गैलरीज में। आपका नजरिया क्या है इस आर्ट मीडियम को लेकर के, और आप इसे आगे कैसे ले जाना चाहेंगे? Okay. So in the world of AI and digitalization, it's an issue. Ki, they don't give much importance to traditional art. But look, everything traditional always take its stand. Ki, they will always be there. Adisha, as this is a world now truly dedicated to digital media, यहाँ तक कि फिल्मों के पोस्टर्स भी ग्राफिक्स से ही बनते हैं। अब वो पुराने जमाने में जैसे पोस्टर्स बनते थे पेंट होकर के, वो बनने बंद हो गए हैं। सो इन टुडेज जनरेशन इफ आई से कि आर्ट्स या तो अमीरों की दीवारों पे सजते दिखते हैं या नेशनल गैलरीज में, तो आप अपने नजरिए से इस आर्ट मीडियम को कैसे आगे ले जाना पसंद करेंगे? Okay. So yes, there is modernization. AI और डिजिटल के साथ सारी चीजें आगे बढ़ी हैं, पर हर चीज बदलती है टाइम के साथ. देयर इज चेंज, मतलब सब कुछ बदलता है. सो वी शुड गेट अलोंग विद इट. मतलब डिजिटल इज लाइक अ टूल. मतलब हम्म। ग्राफिक्स एंड ऑल, दोज आर लाइक अ टूल, दोज आर नॉट द एनिमीज. हमें इनसे बचना है या फिर मतलब वी शुड अडेप्ट टू देम. एंड आई थिंक द ट्रेडिशनल पेंटिंग विल ऑलवेज बी देयर. देयर आर फ्लेक्स बोर्ड दीज डेज, मतलब हैंड पेंटेड पोस्टर्स नहीं होते, बिलबोर्ड्स नहीं होते, पर द वन डिजाइनिंग इज, मतलब जो डिजाइन कर रहा है, देयर इज क्रिएटिविटी. कोई डिजाइन कर रहा है उससे बैठ के. और मैं अपनी तरफ से, मतलब मैं पर्सनली आई एम फ्रॉम ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल मीडियम से हूँ. मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ. मैं बनना भी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट चाहती हूँ. तो यस, दे आर इन गैलरीज दीज डे, पर वी आर ट्राइंग टू मेक देम एक्सेसिबल टू द पीपल. कि आई एम रियली इनटू स्ट्रीट आर्ट, wall arts, murals. Uh, Sometime I commission in cafes and all. So yes, I do. So part-time job kind of thing, huh? That's good. It's like earning while learning, and it's a big support and confidence to you as well, है ना? So Yes. can you please name like Delhi में है कि हरिद्वार में है? Where do you do these type of extra work? No, I do it in Delhi. So Okay. recently I did a cafe commission. It's in What it Ghaziabad, is? Vaishali. हाँ जी. Okay. Hmm. Boho Bistro. Boho Bistro. So Hmm. it is a nice cafe. I actually went there to have a meal, and then Okay. I realized something is missing. So I suggested it to the owner. मतलब, I wasn't advertising it, but I Uh-huh. just suggested. And he took it seriously. He was like, "Can you paint?" And I can. So Uh-huh. he commissioned the entire project to me. So It it's a was good good. idea, like ना कि पढ़ते पढ़ते आपने अपने लिए कुछ कमा लिया. It will give your art a new perspective as well. मतलब यही से शुरुआत होती है धीरे धीरे करके. एंड इस तरीके से यू कैन आस्क अदर स्टूडियोज, डिजाइन, इवन हाउसेस जो लोग पेंट करते हैं,
सो हम्म। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे एज एन बर्डिंग आर्टिस्ट, लाइक आदिशा ग्रोवर का काम पसंद करो एंड समथिंग लाइक दैट? इट वुड बी अ मीडियम आई वुड से. कि यस, मतलब you should try it. मतलब it gives your home a different look. Home, your space, it gives your space a very different and unique look. And we What try type to of colors? What type of colors do you use while painting a house or a cafe or something else, a studio? acrylic colors. These are Acrylic. acrylic paints. How much time does Or it sometime it is emulsion. Those take? royal emulsions we use on wall. Those are more durable. So you take help from others, or is it a single one-man army wala work? I usually prefer the one man army thing. Okay. I don't And how like much group projects. टाइम लगता है एक वॉल को पेंट करने में? About 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. It actually Okay. depends on the design as well, but Mm-hmm. usually it is like 4 to 5 hours on Okay. average. Great. आदिशा, तस्वीरें जो बोलती नहीं है, और हम जैसे कॉमन लोग जो इस बात को सिर्फ एक तस्वीर देख करके और उसकी सराहना करके उसको प्रेज करके आर्टिस्ट को प्रेज करके निकल जाते हैं, बट एक आर्टिस्ट के अंदर की आवाज जो होती है वो जब हम इस थॉट को पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें छलनी कर देती है. आर्टिस्ट के इस थॉट को, इस मेहनत को पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, और एज एन आर्टिस्ट आप अपने को पूरी तरीके से उसमें डेडिकेट कर देते हैं. इस पूरे प्रोसेस के लिए आप क्या हमें समझाना चाहेंगे, इस जो अंदर का अंतर्द्वंद है वैसे? So, art is like a visual language. हम्म. It's easy to say, मतलब express with words. आप आराम से बता सकते हो कि आपको क्या कहना है. But with pictures, it's quite difficult to set everything in one frame. And it should convey the message. And होता क्या है कि कोई भी विजुअल होता है वो इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होता है. आप किसी चीज को देख रहे हो तो यू कैन इंटरप्रेट एनीथिंग. सो आई थिंक मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to convey something visually. If you're designing a poster, if you're making a piece of art, if you're trying to express anything, it takes a lot of work into it. And currently, I'm a student, so I'm just trying to develop a skill set that someday when the inspiration strikes, so I won't be deprived of any skill. मतलब मेरे पास सब कुछ हो, जिस दिन इंस्पिरेशन आए मैं आराम से बना लूं, मेरे को कोई कमी ना हो कि मेरे को कैसे करना है, मैं टेक्निकल पार्ट पूरा कवर हो जाए. So right now I'm focusing on technical part. Okay. These days, books are coming into audio visual forms as well. कभी कभी पिक्टोरियल बुक्स की भी काफी बात होती है. कई बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं सिर्फ वो पिक्टोरियल बुक्स निकालती है जिसमें उनको ईयर्स ऑफ उनका एक्लॉज होता है, उनके प्राइसेस होते हैं. और इफ आई से एनसीईआरटी में भी और सीबीएसई की बुक्स में भी पिक्टोरियल वर्क होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो हाउ डू यू टेक इट, हाउ व्हाट इज योर से अबाउट इट कि पिक्चर्स जो है वो बच्चों को समझाने के लिए या लोगों को बताने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं किसी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए? Okay. So pictures play a very good role. मतलब क्योंकि ऐसा होता है, लैंग्वेज कैन चेंज. मैं हिंदी बोलती हूँ, समवन सेज मतलब कोई मराठी बोलता है, बट हम्म. विजुअल लैंग्वेज रिमेन्स द सेम. इफ देयर इज अ चेयर, इट विल बी अ चेयर. कि हम्म. मैं बोल रही हूँ, कोई कुर्सी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. तो एक विजुअली ये कॉमन ग्राउंड होता है. पिक्चर्स आर कॉमन ग्राउंड फॉर एवरीवन, कि हर कोई उसको इंटरप्रेट कर सकता है, हर कोई उसको समझ सकता है. तो पिक्चर्स प्ले अ मेजर रोल इन बुक्स एंड एवरीथिंग. ओके. एंड यू थिंक दैट कि हमारे सिलेबस में, हमारी बुक्स में जो प्राइमरी बुक्स हैं स्कूल लेवल की, उनमें पिक्चर्स का रोल ज्यादा प्ले होना चाहिए? यस मैम, इट शुड. एक्चुअली पिक्चर्स इम्प्रिंट हो जाती है बच्चों के दिमाग में ना. हम्म. वर्ड थोड़े से मिस हो जाते हैं, पिक्चर्स और कलर्स दे रिमेन. मतलब अभी भी मेरे को पुराने विजुअल्स याद हैं. विजुअल्स ज्यादा जल्दी याद होते हैं. यू सी अ मूवी, आपको सीन्स याद रहेंगे, डायलॉग्स थोड़े से कम मे बी. तो हम्म.
यस। visuals play important role. सबसे फेवरेट आर्ट फॉर्म क्या है और क्यों है? uh, can you clarify मतलब art form in means लाइक of music? आपके जैसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं। इंडिया एज अ यू नो एक पूरा पिक्चर्स क्यों है कि किसी रीजन में कोई आर्ट फॉर्म है। अगर मैं कहूँ मधुबनी आर्ट फॉर्म, वर्ली आर्ट फॉर्म, एंड दीज टाइप ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स आर देयर इन इंडिया। सो एज एन आर्टिस्ट आपको अभी तक का कौन सा ऐसा आर्ट फॉर्म है जैसे राजस्थान इट्स फिल्ड विद विविड कलर्स। सो आपका जो आपको जो कैच करता है, या इसके अलावा जो आर्ट के इंट्रिंसिक पार्ट्स हैं वो आप जानते होंगे, उनमें से आपको क्या फेवरेट है? Okay. So it will be Kailash Nathu temple in Ellora caves. मतलब I have only read about it in the books, मतलब while preparing for entrance itself, हम्म। but it left me awestruck. मतलब it's a rock cut temple हम्म। carved out of monolith rock मतलब वन entire temple is carved out of one rock. वन So I just imagine the craftsmanship of the person, of people, artisans who made it. मतलब रॉक। You have that's not something. visited it yet. No, not yet, but I do wish to visit sometime. So I guess through this medium, the people who would be hearing Adisha should give her a sponsorship or give her a way to go there and see and feel it, and so that she can also make something out of it. It would be her dream come true, I guess. Yes, ma'am, it would be. It would be, yeah, indeed. आदिशा, इंडिया में बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं, फैकल्टीज हैं, Mhm. और आप जैसे बर्डिंग आर्टिस्ट भी उनमें से किसी एक से निकल करके आ रहे हैं। आपके आगे के लिए जो टारगेट होगा वो क्या होगा? Okay. So मेरा टारगेट मास्टर्स के लिए तो ये होगा कि आई विल try some foreign university. There are good colleges in India, but हम्म। I think I should go out and explore as well. कि let's see what's there, what's the hype about. ओके, दैट्स So कूल। Adisha, how do you define success for yourself, not by the society's definition? okay. So for now, success will be mastering the anatomy, all mediums, everything. It will be success for me. कि you learn throughout the life, Mm-hmm. but you know, at one point you know that now I know all this. I have mastered this. कि if someone tells me in sleep to draw someone from memory, it will be an achievement. Ki I can paint a face from memory. I Okay. can't right now, Mm-hmm. but I aspire. Okay. Mm, What's one thing you promise to never lose, no matter how big you get? It will be consideration for others. I will be considerate, however successful I get. Mm-hmm. अच्छा, because you are a young generation kid and आई नो ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको वो रन करता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कभी कुछ प्रेजेंट करती हैं, और क्या इसमें प्लेजरिज्म का खतरा तो नहीं रहता? हाँ, honestly speaking कि हर कोई जो पोस्ट कर रहा है doesn't get famous. करेक्ट, यस। Okay. So there is always a risk of plagiarism, copyright infringement and everything. So ऐसा कोई पीस होता है जिसका मुझे लगता है कि अभी सबको नहीं दिखाना है या फिर मेरे को किसी कंपटीशन में डालना है, तो आई डोंट पोस्ट इट बिकॉज करेक्ट। ओके। हाँ, इट्स अ प्राइवेट थिंग दैट यू आर गोइंग टू हाँ प्रेजेंट बिगर प्लेटफॉर्म, बट इन जनरल जो आप क्रिएट करते हो फॉर योर लाइकनेस, तो आप वो कभी दिखाते हो?
एंड उसका जैसे वीडियोस के बहुत सारे व्यूज आते हैं, वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं। सो आर्ट फॉर्म को अगर आप अपने इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, सो उसका क्या कनेक्शन आता है, उसका क्या रिजल्ट आता है? उसका रिस्पॉन्स रिस्क। सम इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, आई विल से कि अच्छा। we put in a lot of effort in editing and shooting and everything, but at one point I stopped posting and stuff कि मैंने छोड़ दिया था। And I जस्ट ड्यू was टू like कि डिस्करेजमेंट। due to discouragement, but then I started again. I recently started again, and अच्छा। this time I started for myself कि I wasn't करेक्ट। like trying to please anyone. करेक्ट। I was just creating for myself. दिस शुड बी द जेस्चर ऑफ लाइफ, कि आपको अपने लिए करना है, आपको किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। सो इट विल गिव यू ऑल द टाइम दैट मोटो, कि मैंने आज ये डाला है तो मैं कल ये डालूंगी। इट डजेंट मैटर कि लोग लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट यू विल हैव अ स्पीड, यू विल हैव अ हर दिन का एक प्रिसिशन होगा कि आज डाला है तो कल उसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। It's keep you मतलब on track कि आपको अब करना है। तो ऐसे में आप कॉपीराइट को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बिकॉज आपका आर्ट है, आपका एक्चुअल आर्ट है, इट शुड नॉट बी कॉपीड एनीवेयर। Yes, it shouldn't be. And if someone tries to copy it, मतलब so they should give credit to it कि अगर किसी को इंक्लूड करना है, किसी को इंस्पिरेशन लेना है, मतलब कॉपी करना या कहीं से इंस्पायर होना isn't wrong, but stealing is wrong. ओके। तो आतिशा, आर्टिस्ट होने के नाते मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, दो इट्स बहुत पुराने टाइम की बात है, कि पिक्चर्स भी आप देखते होंगे, और आप किस तरह की फिल्म्स देखते हैं जो आपके आर्ट को इंस्पायर करती है? इन प्रीवियस इयर्स, बहुत प्रीवियस इयर्स अगर मैं कहूँ, तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स भी आपने जो गैलरीज में अवेलेबल है वो देखी होंगी। बहुत साल पहले से ही वो पेंटिंग्स रही हैं, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को एक रूप दिया है। इनफैक्ट उस पे मूवी भी बनी है। तो इस तरह की चीजें आपको क्या इंस्पायर करती हैं, और आप उनसे कितना ले पाते हो? ओके, तो जितनी ये मूवीज होती हैं ऑन द लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, इट वाज रंग रसिया रंग ऑन रसी। राजा रवि वर्मा। हम्म। तो इट गिव्स एन इंसाइट इन देयर लाइफ कि उनका उनको क्या चीज इंस्पायर कर रही है, या हम्म। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उन्होंने मतलब उन्होंने किस चीज से इंस्पिरेशन ली, उनका थॉट प्रोसेस क्या था। जितनी ऐसी फिल्म्स होती है वो इंसाइट देती है, मतलब मैं इन्हें डॉक्यूमेंट्री की तरह देखती हूँ, ऐसी जो फिल्म्स होती है, हम्म। बिकॉज those aren't quite entertaining like other thrillers and all, but honestly I am into thrillers, but I बिकॉज मुझे लगता है कि हर करेक्टर ऐसी मूवीज में एक आर्ट के रूप में ही प्रेजेंट होता है। uh, अदिशा, एज यू टोल्ड मी अर्लियर कि आप फॉरेन में जाकर के पढ़ना पसंद करोगे, उस आर्ट फॉर्म को समझना पसंद करोगे। सो इन रीसेंट टाइम्स वेस्टर्न वर्ल्ड की पेंटिंग्स, इंडिया या एशिया पैसिफिक वर्ल्ड की पेंटिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है? in recent time there isn't much of a difference, there isn't much of a difference in style because मतलब I think people have lost originality, everyone is going with the trend कि जो लाइक। trending है हम्म। let's copy it, but in earlier days there was a difference between western and indian art, indian and asian art as well. If you look deep into it, western art was always about ornamentation and matlab, what they can see, हम्म। and indian art was always about ki, what's beyond the sight. There was a spiritual element into art करेक्ट। that's always been here. So there's a famous painting which deals with the psychology of a human mind, Van Gogh की, you know. Yep, very nice. So, these type of paintings are, I guess, इंडिया की पेंटिंग्स, और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की पेंटिंग्स देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी डिफरेंट है। लाइक मोनालिसा, इट्स अ पेंटिंग। It's about कि western world was about copying कि उनका imitation was very good. ओके।
Mona Lisa was an imitation. It was made in Renaissance period by Da Vinci. Da Vinci, yeah. So they were the masters of imitation, the light and shadow and all. तो ये वाली क्वालिटी तो राजा रवि वर्मा ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, Mm-hmm. और उससे पहले थोड़ी सी क्रूडनेस थी इंडियन आर्ट में, बट देयर वाज अ ब्यूटी की, कलर्स की ब्यूटी, ऑर्नामेंटेशन की ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी की ब्यूटी. हमारे थीम्स अलग होते थे, उनसे काफी डिफरेंस था. आज की डेट में सब ग्लोबलाइज्ड है, मतलब सब सेम है. कुछ ऐसा नहीं है कि यू वुड फाइंड समथिंग वेरी डिफरेंट. आदिशा, जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए रंग आपके कितने काम आएंगे? आपके पेरेंट्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं इस बारे में? बिकॉज यू हैव टेकन अ टफ डिसीजन. Okay, I have. Actually, my parents are very supportive. So sometimes when they say कि it's an अंधी खाई, मतलब कि you don't know कि कब you will get successful and you will get fame. So I say कि okay, I have rope tying me. मतलब I have you people. हाँ, I won't fall down. करेक्ट. हैंड होल्डिंग अगर घर की होगी, सो आई एम वेरी श्योर कि यू विल रीच द स्काईज वन डे. Yes, I will. Hopefully I will. Adisha, as we are discussing, and I came to know that you came from a small town, though it's not a small town, but live after living in Haridwar and then shifting to Delhi, आपका आर्ट के लिए क्या परसेप्शन बदला, और आपको यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज से सामना करना पड़ रहा है, सो दैट इट कैन गिव यू अनदर पाथ इन द लाइफ. Okay. So actually I am from Kotdwar, Haridwar. I studied in Haridwar. So for me, that Acharya Gulam was the entire world. I always stayed inside. Coming to Delhi, it was a big step in my life. क्योंकि I didn't know how to cross the road. I always stayed inside, and it was a big deal for me crossing the road, the highways and stuff. So opportunities, there are many opportunities here. On weekends you get to attend the workshops. You can go on sketching drives and all. They go on walk and sketch. Uh, there are many competitions. There are many workshops. So coming to Delhi was a big step in my life, and it was good. Delhi was the last place I wanted to be, but now I don't regret. I'm happy here. Oh, that's cool. लास्ट में जाते जाते आदिशा, कोई ऐसा मैसेज जो अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, अपने स्कूल को देना चाहोगे, स्कूल के स्टूडेंट्स को, सो दे कैन गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, इवन द Okay. बडिंग आर्टिस्ट एज वेल. Okay. So everyone has a gift कि सबके पास कुछ ना कुछ होता है. तो it's better to soon recognize it and put entire effort into it. उसे disrespect मत करो अपने गिफ्ट को, कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से काम करो, and don't let it go to waste. Don't stay glued to your screens. Get working. That's all. That was an insightful, interview with you. And it was completely dedicated towards arts and art forms. So I wish you all the best, Adisha. May you reach skies and become a very good artist. Make your name a big one. And my congratulations to you in advance. And thank you for reaching out to Kashtam Jalu. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Thank you, Adisha. So for today, this is it from CTY. I hope you would like this episode too. Please like and subscribe our social media handles. YouTube पर भी हम अवेलेबल हैं, हमें फॉलो करें. और हाँ, एक आवाज बनकर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो हमें ईमेल के जरिए संपर्क करिए. अभी तक के लिए इतना ही. CTY की पूरी टीम का और हम आपके सामने आते रहेंगे. Thank you so much for listening us. Thank you.